چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں رائے ونڈ کا جو عالمی تبلیغی اجتماع ہوتا ہے اس کے اندر، اور آپ نے جس طرح کے رائے ونڈ کے اجتماع کے پہلے مرحلے کی ویڈیو رپورٹ ملاحظہ کی ہمارے پیج پر، تو ہم نے سوچا کہ دوسرا مرحلہ جو ہو رہا ہے اس اجتماع کا، تو کیوں نہ ہم وہاں جا کر کچھ مناظر آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ جو ہم نے اعداد و شمار آپ کو دیے تھے ان کو ہم جسٹیفائی کر سکیں اور اس لوکیشن پہ، اس جگہ پہ جا کر آپ کو دکھا سکیں کہ حقیقت میں یہاں کتنے بڑے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت میں آپ کو اگر راستہ تھوڑا سا بتا دوں، بریف دے دوں ایک، کہ جب آپ رائے ونڈ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک ٹھوکر نیاز بیگ سے آپ لاہور میں انٹر ہو کر رائے ونڈ روڈ پر چلے جاتے ہیں، یا پھر آپ لاہور کے رنگ روڈ پر آتے ہیں جو کہ بیسٹ راستہ ہے، اور وہاں سے آپ جا کر رائے ونڈ کے روڈ پر اتر جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہم لاہور رنگ روڈ پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم رائے ونڈ کے لیے اتریں گے، اور وہاں سے ہم رائے ونڈ روڈ کی طرف جائیں گے، اور آگے جا کر رائے ونڈ پنڈال کی جانب 2-3 مختلف راستے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک پورا بریف آپ کو ٹور کروائیں اس اجتماع کا۔ تو اس اجتماع میں دعا تک ہم نے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے ساتھ چلتے ہیں اور رائے ونڈ اجتماع کے خوبصورت مناظر آپ کے ساتھ لائیو شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو ساتھ رہیے گا اس ولاگ میں، آئیے چلتے ہیں۔ دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں رائے ونڈ روڈ کے اوپر ہی، اور رائے ونڈ مرکز کو جو راستہ جاتا ہے وہ بالکل سٹریٹ ہے، سیدھا، لیکن پنڈال میں جانے کے لیے آپ کو پاجیاں چوک ہے یہاں پہ، وہاں سے آپ کو جب آپ لاہور سے رنگ روڈ سے اتر کر آ رہے ہوتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ جانا ہوتا ہے۔ یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف، اور ٹریفک کے پولیس کے بہت سارے جوان، بہت سارے آفیسرز، ان کی پوری نفری یہاں پہ تعینات ہے، اور باقاعدہ طور پہ وہ ٹریفک کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دوسرا راستہ ہے جو کہ حویلی اور خواص کے لیے ہے، جو مہمان آ رہے ہیں باہر ممالک سے، دور دراز سے، ان کے لیے جو راستہ ہے وہ اگلا راستہ ہے، یہاں سے تھوڑا 2-3 کلومیٹر آگے، وہ بھی رائٹ سائڈ ہی کی طرف آپ جائیں گے۔ تو ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ ٹریفک پلان کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کریں، اور پھر آپ کو اس کے بعد پنڈال لے کر جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ساتھ رہیے گا پلیز۔ توحید کی شاہین تیرا کام گشت ہے، میدان عمل کے لیے پیغام گشت ہے۔ ہاں جی، ہم پہلے انٹرنس سے اندر آ چکے ہیں، اور جب سے ہم انٹر ہوئے ہیں تو پارکنگ کا مرحلہ شروع ہوا ہے، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ پارکنگ کا سلسلہ ختم ہوگا، لیکن روڈ کی دونوں سائڈ، خاص طور پہ میرے رائٹ سائڈ اگر آپ دیکھ سکیں تو بہت ہی طویل قسم کی پارکنگ ہے۔ یہاں کاریں، یہاں بسیں، ہائی ایس کوسٹر، ٹرک، اور ان کے لیے پارکنگ کا بہت ہی بڑا اور وسیع انتظام ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک ایریل ویو بھی اس کا دکھائیں، اور یہ تا حد نگاہ ہے، نہ تو یہ ڈرون میں کور ہو سکتا ہے، نہ یہ کسی کیمرے میں کور ہو سکتا ہے، روڈ کے دونوں اطراف۔ اور یہ پہلی انٹرنس ہے صرف، جب آپ دوسری تیسری انٹرنس پہ جائیں گے تو ہر روڈ پہ اسی طرح سے تقریباً ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی 200 ایکڑ کے قریب رقبہ صرف پارکنگ کے لیے یہاں پہ مختص ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ پارکنگ کیسے منظم ہوتی ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کوئی گاڑی یہاں سے چوری نہیں ہوتی ہے، کوئی گاڑی یہاں پہ بے ترتیب کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ روڈ کے اوپر کوئی گاڑی، آپ کو پورا روڈ ہم آئے ہیں، کوئی گاڑی ہمیں روڈ پہ کھڑی ہوئی نہیں ملی ہے، ممکن نہیں ہے۔ اور یہ صرف ٹریفک پولیس کا تو جہاں ان کا تعاون ہے وہ ہے ہی، لیکن خود تبلیغی جماعت کے اندرونی جو سیٹ اپ ہے، اور ان کے اندرونی جو رضاکار ہیں جو بے لوس یہاں پہ بلا معاوضہ خدمات سر انجام دیتے ہیں، ان کی بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ اس طرح سے اس ٹریفک کے پورے نظام کو منظم کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس کے حوالے سے مزید کچھ ڈیٹیلز کوشش کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی، تو ساتھ رہیے گا پلیز۔ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ایمان جی جس طرح سے ہم نے آپ کو دکھایا، پہلا راستہ رائے ونڈ اجتماع گاہ کی طرف جانے کا،
वो आम पब्लिक के लिए रास्ता है और वहीं हम आपको लेकर भी गए। हमने आपको पार्किंग का वो मरहला भी दिखाया, सारा इंतजाम जो पार्किंग के वहाँ पे किए गए हैं। आम पब्लिक की पार्किंग, आम पब्लिक का एंट्रेंस जो है वो वहीं से है, उसी रास्ते से। अब जिस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं, ये यहाँ यूनिक कैंपस का बोर्ड है और आगे रायविंड स्मार्ट होम्स का बोर्ड है। और मेरे लेफ्ट साइड पे अगर आप देख सकें तो ये जो एक नहर सी है, इसके आसपास के जो रास्ते हैं, ये वाले रास्ते खवास के लिए हैं, जो कि ख़ास मजमा है, जो मेहमान बाहर से तशरीफ़ ला रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि दूसरा रास्ता वो यहाँ से जा रहा है इज्तिमा गाह की तरफ, जिसको हम हवेली का रास्ता भी कह सकते हैं। हवेली रायविंड की एक ख़ास कंपाउंड है रायविंड का, जिसके अंदर जो मुआज़्ज़ज़ मेहमानान बयानात करने वाले बुजुर्ग हज़रात पूरी दुनिया से, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पूरी दुनिया से तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ वो ठहरते हैं। इसको हवेली वाला रास्ता इसलिए कहा जाता है कि ये उन बुजुर्गों की गुज़रगाह भी है। आम पब्लिक के लिए ये रास्ता खुला नहीं है। हर माल छीन लेगी, मिटा देगी ये दुनिया। सिक्योरिटी का यहाँ पे जो इंतज़ाम है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। दो तरह की सिक्योरिटी है यहाँ पे। एक तो पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात है, डॉल्फिन फोर्स, रेंजर्स, एलीट फोर्स, और इसी तरह से जो रायविंड मरकज़ की अपनी सिक्योरिटी है, यानी उनके अपने जो अहबाब हैं, जो खिदमतगार हैं। तो जहाँ तक पुलिस की बात है, अभी हमारी एक आला अहदेदार जो पुलिस के यहाँ पे सिक्योरिटी को मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस रायविंड के इज्तिमा की सिक्योरिटी को देखने के लिए 3 SP साहबान ऑन बोर्ड हैं, इसी तरह से 7 DSP और 30 SHO एट द सेम टाइम इस रायविंड इज्तिमा की सिक्योरिटी पर मामूर हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इन बड़े ऑफिसर्स के तहत तकरीबन 2500 पुलिस फोर्स के जवान वो सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे अकब में आप देख रहे होंगे वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं रायविंड मरकज़ या पिंडाल के अंदर इंटर होने के, वहाँ वॉक थ्रू गेट्स का सिलसिला है, जो कि पहले नज़र नहीं आता था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी हमें वो पुलिस के आला अहदेदार बता रहे थे कि इतना पोलाइट लहजा है, इतनी कोऑपरेशन है लोगों की कि हमें महसूस नहीं होता कि ये लोग झगड़ा कर सकते हैं, ये लोग लड़ सकते हैं किसी से। फोर्सेस के साथ मुकम्मल ताउन किया जा रहा है यहाँ पर। और जिस तरह आप देख भी रहे हैं कि बड़ा स्मूथली लोग इंटर हो रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग एग्जिट कर रहे हैं, और हर पॉइंट का तकरीबन यही हाल है। लाखों का बिलाशुबा ये मजमा है और कहीं कोई बदनज़मी अल्हम्दुलिल्लाह देखने में नहीं आई है। जहाँ पे CCTV कैमरास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है, उसकी क्या डिटेल्स हैं हम कंट्रोल रूम का कोशिश करेंगे आपको विजिट करवाने की। जी अभी हमने कंट्रोल रूम का विजिट किया है, जहाँ पे CCTV कंट्रोल रूम है यहाँ पे पूरा। अंदर के कुछ मनाजर आपके साथ हम शेयर इस वजह से नहीं कर सके बिकॉज के ज़ाहिर है वो एक सेंसिटिव एरिया है पूरा। तकरीबन यहाँ पे कोई 30 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं इस पूरे इज्तिमा के लिए, जो इंट्रेंस पॉइंट बनाए गए हैं या सिक्योरिटी चेक पोस्टें हैं जो, और हर पॉइंट के ऊपर 50+ कैमराज नस्ब किए गए हैं। यानी इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सैकड़ों से बात निकल के हज़ारों में चली जाती है जो यहाँ पे CCTV कैमराज लगाए गए हैं इस पूरे इज्तिमा की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए। अभी हम जिस तरह से हमने आपसे कहा था कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है रायविंड की, उसकी जो तादाद है रज़ाकारों की और वहाँ का जो नज़म है, उस हवाले से भी थोड़ा सा आपको हम ब्रीफ करेंगे, तो साथ रहिएगा। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा। जी हमने यहाँ पे जो रायविंड पूरे इज्तिमा की सिक्योरिटी है लाखों लोगों की, उसके लिए पुलिस एहलकारों के हवाले से जो डिटेल थी वो तो आपके साथ हमने शेयर की। और हमने आपसे कहा था कि हम यहाँ के जो रज़ाकार हैं रायविंड के अपने रज़ाकार जमात के साथी, उनकी भी तादाद आपसे शेयर करेंगे। तो 1500 से 2000 रज़ाकार सिक्योरिटी के लिए मामूर है और हर 3 घंटे के बाद ये शिफ्ट इनकी चेंज होती है। और बाकायदा यहाँ पे मेहमान खाना भी एक बनाया गया है जो कि अगर कोई लोग यहाँ पे चोरी करते हैं या ज़ाहिर हर इतने बड़े मजमे के अंदर कोई भी घुस सकता है, आ सकता है, तो वो लोग उन लोगों की खातिर तवाज़ो के लिए और उनसे चीज़ें बरामद करने के लिए बड़ा एक अच्छा इंतज़ाम है। और अमीर साहब बता रहे थे कि अपने से अच्छा खाना उन मेहमानों को दिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो हमारे जैसे इंसान ही हैं, हम उनको हकीर नहीं समझते, उनके साथ कोई बुरा रवैया इख्तियार नहीं करते, और वो अल्लाह के उसी तरह बंदे हैं जिस तरह हम बंदे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने से अच्छा खाना, और दूसरा बात वो कह रहे थे कि अपनी
जेब से हम उनको खाना बाहर से मंगवा कर खिलाते हैं, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको अल्लाह का पैगाम दें और राह रास्त पर लाने की कोशिश करें। इसी तरह से गुमशुदा अफराद के लिए बाकायदा हल्का है, गुमशुदा अशिया के लिए बाकायदा एक शोबा है। मेरे सामने जब मैं उनके साथ बैठे बात कर रहा था तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा वॉलेट किसी का वॉशरूम में रह गया, तो उनकी कमेटी के किसी रुकन ने वो वॉलेट उनको ला कर दिया और उसमें हज़ारों रुपए थे, लेकिन मजाल है कि एक रुपया भी कहीं इधर उधर हो जाए। ये उनकी ट्रांसपेरेंसी है, उनकी ईमानदारी है और उनका ये जमात की बरकत है कि इतना स्मूथनेस से ये काम सारा हो रहा होता है। सो गुमशुदा अफराद हों, गुमशुदा अशिया हों, कोई भी चीज़ इस पूरे हल्के से कहीं नहीं जा सकती है, ये बहुत बड़ी बात है। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा। जी, इज्तिमा के अंदर हम मौजूद हैं और आपको इंतज़ामात से आगाह कर रहे हैं। इंतज़ामात पर बात हो रही है, मज़ीद भी बात होगी, लेकिन उससे पहले तरतीब आमाल पर कुछ बात हो जाए कि यहाँ बयानात की क्या तरतीब है इस इज्तिमा में। जुमरात से इस मरहले का आगाज़ है 11 नवंबर से, और असर की नमाज के बाद का जो बयान है जुमरात को वो हज़रत मौलाना नज़रुर रहमान साहब दामद बरकातुहूम का, मगरिब के बाद का बयान हज़रत मौलाना इब्राहिम देवला साहब का। इस तरह 12 नवंबर बरोज़ जुमा फजर के बाद मौलाना अब्दुर रहमान साहब मुंबई वाले, उनका बयान। जुमे के बाद का बयान जो है वो हज़रत मौलाना इस्माइल गोधरा साहब का है। असर के बाद, जुमे के दिन असर के बाद के जो बयान है वो मौलाना ज़ुहैरुल हसन साहब निज़ामुद्दीन, उनका बयान हुआ। मगरिब के बाद हज़रत मौलाना अहमद लाड साहब हिंदुस्तान के जो बुज़ुर्ग हैं उनका बयान हुआ। 13 नवंबर बरोज़ हफ्ता, यानी इज्तिमा का ये एक तरह से तीसरा दिन भी कह सकते हैं, दूसरा दिन भी कह सकते हैं। फजर के बाद हज़रत मौलाना रबीउल हक साहब बांग्लादेश, उन्होंने बयान फरमाया। ज़ोहर के बाद हज़रत मौलाना अब्दुल मतीन साहब इंडिया, उनका बयान। हज़रत असर के बाद, यानी हफ्ते के दिन असर के बाद भाई फ़ारूक साहब बेंगलोर, उनका बयान हो। मगरिब के बाद का जो बयान है हफ्ते के दिन वो हज़रत मौलाना इब्राहिम देवला साहब दामद बरकातुहूम। 14 नवंबर इतवार का दिन, दुआ का दिन, और दुआ को फजर के बाद जो मामूल है हिदायत होती हैं उन जमातों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में निकल रही हैं, वो हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद साहब रायबिन, उन्होंने हिदायत उनके ज़िम्मा होती हैं और वो हिदायत इरशाद फरमाते हैं। पिछले मरहले में भी हिदायत उन्होंने इरशाद फरमाई। और दुआ जो बरोज़ इतवार वो हज़रत मौलाना इब्राहिम देवला साहब दामद बरकातुहूम। ये पूरा इसका शेड्यूल था इज्तिमा में बयानात का। अगर हम बात करें इस इज्तिमा से निकलने वाली जमातों के मुतालिक, तो मैं आपको दूसरे हिस्से की अगर तरतीब बताऊँ तो साल 7 माह बैरून 43 जमातें निकली हैं, 1 साल अंदरून मुल्क 99 जमातें निकली हैं, 3 चिल्ले और 4 महीने की तकरीबन 1879 जमातें। इसी तरह से मुतफर्रिक अय्याम मुख्तलिफ दिनों के लिए 154 जमातें, बैरून मेहमानों की वो तकरीबन 160 जमातें इस दूसरे मरहले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकली हैं। और कुल ये मीज़ान जो बनता है वो 2335 जमातें अल्लाह के रास्ते में निकली हैं। और अगर पिछले मरहले और इस मरहले का मिलाकर बताएँ तो तकरीबन 4404 जमातें मुख्तलिफ औकात की वो अल्लाह के रास्ते में इस इज्तिमा से रुखसत हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मज़ीद इंतज़ामात के हवाले से कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, तो हमारे साथ में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। इस वक्त हम एज़ यू नो कि हम रायविंड इज्तिमा के पंडाल में मौजूद हैं, और हम अपने अकब में अगर आपको दिखा सकें तो ये पूरा मरकज़ी इलाका है। यहाँ इस पंडाल का मरकज़ी, इस तबलीगी इज्तिमा के मरकज़ी हिस्सा है, ये मरकज़ी पंडाल का मरकज़ी हिस्सा। यहाँ पे आप अगर देख सकें मेरे लेफ़्ट साइड पे तो एक टैंकी नंबर 1 है, मगरबी टैंकी नंबर 1 आपको नज़र आ रहा होगा। ये मरकज़ी हिस्सा है इस पंडाल का, और यहीं पे हवेली का एरिया है जो बुज़ुर्गों की रिहाइश गाह है, मेहमानों की रिहाइश गाह है। और इस मेरे राइट साइड के ऊपर यहीं पे अकब में मिंबर है, जो कि जहाँ से सारे बयानात होते हैं, जहाँ से पूरा का पूरा मजमा, जो लाखों का मजमा यहाँ आता है, वो एड्रेस होता है। तो ये वो मरकज़ी हिस्सा है, और पीछे ताहद निगाह पंडाल है। तकरीबन पंडाल का जो एरिया है वो 500 एकड़ पर मुहित है। ये मैं मोहतात अंदाजे से आपको बता रहा हूँ। रायविंड इज्तिमा के अंदर हर तरह की कमेटियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। ट्रैफिक का हमने आपको बताया, सिक्योरिटी का आपको हमने बताया, इसी तरह से यहाँ पे मेडिकल की पूरी सहूलत है। हमारे होते हुए एक हादसा हुआ तो फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 और जो यहाँ का अपना इनका अमला है, डॉक्टर्स हज़रात का रज़ाकार हैं यहाँ पे मौजूद, तो वो सारे लाइन अप हो गए 1 मिनट के अंदर अंदर। इसी तरह से यहाँ जो बैतुल खलाओं का निज़ाम है, तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो हमने मालूमात ली यहाँ से, तकरीबन कोई 18 से 20 हज़ार सिर्फ बैतुल खला तामीर किए गए हैं, जो आप फुटेजेस में देख भी रहे होंगे यकीनन। इसी तरह से वज़ू खाने हैं,
بہت ہی زبردست انداز میں ان کو تعمیر کیا ہے. کچھ عارضی ہیں, کچھ مستقل ہیں یہاں پہ. اسی طرح سے یہاں بجلی کا پورا ایک شعبہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے اتنا بڑا پنڈال, اس کو رات کو روشنی چاہیے, دن کو لاؤڈ سپیکر کے لیے اس کو لائٹ چاہیے. تو وہ سارا کا سارا پورا ایک شعبہ قائم ہے جس کے مختلف جگہوں پہ مختلف پوائنٹس بنے ہوئے ہیں, کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں, لاؤڈ سپیکر کا شعبہ ہے. اس اجتماع میں لوگوں کی ضروریات کے لیے تقریباً 20 بڑے بازار وہ لگائے گئے تھے, اور اسی طرح سے 18 مرکزی اور بڑی کینٹینز یہاں پہ کام کر رہی تھیں دن رات لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اسی طرح سے یہاں پہ تندوروں کا ایک بہت بڑا منظم سلسلہ ہے, روٹیاں جہاں پہ ملتی ہیں, پکتی ہیں. تو اوور آل پورا ایک شہر آباد ہے الگ سے ماشاءاللہ. تو کریڈٹ گوز ٹو انتظامیہ, ہول انتظامیہ رائیونڈ اجتماع, اور جو لوگ اس کے معاونین ہیں, اور جو رائیونڈ کی پوری شورا ہے, اور جو لوگ اس میں رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں, سارے کے سارے, اور شرکاء آف کورس جو اس اجتماع کو اس پیمانے پہ کامیاب بناتے ہیں اپنے تعاون کے ذریعے سے. جی یہ جو میرے عقب میں آپ سورج غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, جس وقت ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں, آج دن ہے ہفتے کا, اور رائیونڈ کے عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ, اس کا آج آخری دن ہے گویا, بیکاز کہ کل یعنی آنے والے کل جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سنڈے ہے, اور سنڈے کی صبح دعا ہے, یعنی اختتامی دعا اس اجتماع کی, اور اس کے ساتھ ہی اس اجتماع کی رونقیں سمٹ جائیں گی اگلے 1 سال کے لیے. اور یہاں سے بہت ساری جماعتیں وہ اللہ کے راستے کے لیے رخصت ہوں گی, دعوت اللہ کا پرچم اٹھا کر انشاءاللہ العزیز. تو یہ سورج پیغام دے رہا ہے کہ اجتماع کے آخری لمحات کے ساتھ میں غروب ہو رہا ہوں. تو بہرحال ہم تھرو آؤٹ کوشش کرتے رہے کہ اس اجتماع کے مناظر آپ کے ساتھ شیئر کریں, اور کل یعنی دعا کے دن جو مناظر ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. اور یہاں کا جو ایگزٹ پلان ہے, میں بہت ایکسائٹڈ ہوں وہ دیکھنے کے لیے بھی, کیونکہ جو ہمیں یہاں بتایا گیا کہ ود ان 2-3 یا 4 آورز تقریباً پوری کی پوری یہ ٹریفک, یہ 40-50 ہزار گاڑی یہ نکل جاتی ہے, نہ صرف رائیونڈ سے بلکہ لاہور سے بھی ایگزٹ کر جاتی ہے. بہت بڑی کامیابی ہے. سو ویری ایکسائٹڈ کہ کل کیا ہوتا ہے, کیا دیکھتے ہیں, اور آپ کے ساتھ بھی وہ چیزیں انشاءاللہ شیئر کریں گے. اور اس اجتماع کی برکت کا اس میں بہت اہم عنصر ہے آف کورس. تو کل دعا تک کے لیے آپ ویٹ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ, اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ. جی ہم آپ کو یہاں کی ٹریفک کی صورتحال بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہاں پہ پوری ٹریفک کا پورا نظام یہ منظم ہوتا ہے. بیسیکلی یہاں پہ 9 پارکنگز ہیں کل, جو کہ تقریباً 170 ایکڑ پر مشتمل ہیں وہ پارکنگز. بہت بڑا ایریا ہے پارکنگز کا, اور ان 9 پارکنگز کے اندر تقریباً جو پولیس اہلکار ہیں, سٹی ٹریفک پولیس کے 2 SPs, اسی طرح 12 DSP, اور ٹوٹل تقریباً 1000 کے قریب اہلکار. ہمیں جو فگر دیا گیا ہے وہ 899 کا ہے, لیکن اس سے زیادہ ہی ہیں اہلکار جو ہیں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں مختلف انٹرنس پوائنٹس پہ, اسی طرح سے پارکنگ پوائنٹ کے اوپر, اسی طرح سے روڈ کے اوپر ٹریفک کی روانی کو مینٹین کرنے کے لیے. اسی طرح سے 12 کار لفٹر ہیں, 2 بریک ڈاؤنز ہیں, اگر کوئی بڑی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ان کو ریکور کرنے کے لیے. اسی طرح سے 5 ریکوری وینز ہیں, چھوٹی گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں ان کو ریکور کرنے کے لیے تاکہ روڈ بند نہ ہو, ٹریفک متاثر نہ ہو. اسی طرح جو رائیونڈ مرکز کے جو رضاکار ہیں وہ تقریباً 2000 کے قریب رضاکار جو ہیں وہ پارکنگ اور ٹریفک پولیس اہلکاروں کی معاونت کر رہے ہیں, یعنی آلموسٹ ڈبل ان کی تعداد سے. اور اسی طرح سے پارکنگ کے اندر یہ کیسے میک شور کیا جاتا ہے, ہم نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیسے آپ میک شور کرتے ہیں کہ جو گاڑی آئی ہے واپس بھی وہی مالک اس کو لے کر جائے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک بار رول یہ ہے کہ جب ایک بار گاڑی پارکنگ میں انٹر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد دعا سے پہلے وہ گاڑی نہیں نکل سکتی ہے, اور دعا کے وقت بھی جب وہ نکلے گی پارکنگ سے, یہ پہلے نکلنا چاہے اگر کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں, تو وہ گاڑی نکالنے والا اس کے پراپر ڈاکیومنٹس ایک چیز اوریجنل وہاں پہ استقبالیہ میں جو ٹریفک استقبالیہ ہے اس پارکنگ کا وہاں پہ دکھائے گا, اور اس کے بعد وہ گاڑی باہر جائے گی. تو اس پوری پریکٹس کے بعد یہ امکان ہی ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی گاڑی چوری ہو سکے یا گاڑی مس ہو سکے یہاں سے. اسی طرح سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی کہ جب یہ پورا اجتماع ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد دعا ہوتی ہے, تو دعا کے بعد ایک ہجوم ہوتا ہے گاڑیوں کا. ظاہر ہے تقریباً کوئی 50,000 کے قریب گاڑی کو یہاں سے ایگزٹ ہونا ہے. اس میں موٹر سائیکل ہیں, اس میں کاریں ہیں, اس میں بسیں ہیں, اس میں ٹرک ہیں, ہائی ایس ہیں, بہت طرح کی ٹریفک ہے.
तो कैसे इसको वो एग्जिट कैसे मुमकिन बनाते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि रायविंड की तरफ 4 रोड आते हैं, लाहौर, कसूर, इसी तरह मांगा और इसी तरह से जो यहाँ आसपास के कुछ इलाके हैं, उनके 4 मेन रोड हैं जो रायविंड आते हैं। तो रायविंड आने वाले इन चारों मरकजी रास्तों को बंद कर दिया जाता है। दुआ से 1 घंटा पहले रायविंड की तरफ कोई ट्रैफिक आ नहीं सकती, और फिर उसके बाद जैसे ही दुआ होती है तो तरतीब के साथ ट्रैफिक को यहाँ से मूव करवाया जाता है। सबसे पहले 1 घंटा दिया जाता है मोटरसाइकिलों को कि वो यहाँ से निकलें, और उनके साथ साथ पैदल लोग निकलें। मोटरसाइकिल और पैदल लोग 1 घंटे में यहाँ से मूव करते हैं। फिर उसके बाद उस 1 घंटे के बाद अगले जो 2 घंटे हैं वो कार, हाईएस, छोटी गाड़ियाँ जो हैं उनको दिया जाता है वो यहाँ से मूव करें। और फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद जो अगला तीसरा घंटा शुरू होता है उसमें ट्रक और बसों को इजाज़त होती है कि वो यहाँ से मूव करें। पिछला जो मरहला इज्तिमा का गुजरा 4 नवंबर से 7 नवंबर तक, इंतज़ामिया का ये बताना है, ये बड़ी हैरान कुन फिगर है कि तकरीबन 9 बजे यहाँ से दुआ जब ख़त्म हुई तो ट्रैफिक यहाँ से इसी तरतीब से निकालना इन्होंने शुरू की, और 3 घंटों के अंदर ये तकरीबन 40 से 50 हज़ार गाड़ी सारी पार्किंग से निकल चुकी थी और इस रायविंड की सड़कों को खाली कर चुकी थी। और 1 बजे ठोकर नियाज़बीग जो मेन पॉइंट है लाहौर से एग्जिट का, वहाँ से मोटरवे पे गाड़ियाँ चढ़ चुकी थी, अपनी अपनी मंजिल को जा चुकी थी। ये बहुत बड़ी हैरान कुन कामयाबी है, और ये इन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का और इसी तरह रायविंड इंतज़ामिया और यहाँ के जो रज़ाकार हैं उनकी ये कमिटमेंट है कि माशाल्लाह से इतनी जल्दी ये सारा निज़ाम एक तो मुनज़्ज़म रहता है और फिर इतनी जल्दी एग्जिट मुमकिन होता है। इसी तरह से ये भी बताया गया कि यहाँ जो चिंगची हैं पूरे इस इज्तिमा के आसपास यहाँ आने में, तो चिंगची के लिए पूरा एक अलग रूट बनाया जाता है, उनको आम गाड़ियों के रूट से आने की इजाज़त नहीं होती है। तो इस तरह से पूरा ट्रैफिक का जो निज़ाम है ये मुनज़्ज़म होता है, आने से लेके, पार्किंग से लेके और फिर एग्जिट तक। तो ये हमने आपके साथ शेयर किया। अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख चल। इज्तिमा के दूसरे मरहले का आखिरी दिन है। इस वक्त हम खड़े हैं सुबह फजर के बाद का ये मंज़र है, और आप देख रहे हैं और अभी हिदायत जारी हैं यहाँ पे जमातों के लिए, वो जमातें जो अल्लाह के रास्ते में निकल रही हैं यहाँ से आज। और ये यहाँ मनाज़र आप देख रहे होंगे मेरे पस मंज़र में, लोग अपना सामान बांध कर अपनी गाड़ियों की तरफ रवाना हो रहे हैं, क्योंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा दूर दराज से लोग आते हैं, तो सामान बांध कर लोग रुखसत हो रहे हैं। आप पीछे देख रहे हैं कुछ लोगों की गाड़ियाँ इस तरफ खड़ी हैं तो वो इस तरफ जा रहे हैं, कुछ लोगों की गाड़ियाँ इस पार्किंग में हैं तो वो इस तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल एक इस वक्त एक रुखसती का माहौल है। और ये जो पीछे पस मंज़र में आप एक ऑडियो सुन रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं लाउड स्पीकर की, तो यहाँ हिदायत हो रही हैं रुखसत होने वालों को कि आपने अब जमातों में जाकर वक्त कैसे गुजारना है, घरों में जाकर वक्त कैसे गुजारना है अपने। और इस हिदायत के बाद, इन हिदायत के बाद दुआ होगी, और दुआ के बाद बाकायदा ये पूरा मजमा एक तरतीब के साथ रुखसत होगा। पहले पैदल, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल, फिर उसके बाद कारें, फिर हाईएस, फिर बस और फिर ट्रक। इस तरह ये मजमा इंशाअल्लाह लज़ीज़ रुखसत होगा। तो हम इस रुखसती के कुछ मनाज़िर मज़ीद भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह लज़ीज़। बहुत शुक्रिया आप सबसे। हमारी मग़फ़िरत फरमा, इस मजमे की मग़फ़िरत फरमा, इस मजमे की मग़फ़िरत फरमा। ये मजमा जहाँ पहुँच जाए उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की पूरी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, और उम्मत की सलाहियतों को दीन पर लगा दे। ए अल्लाह उम्मत की सलाहियतों को बर्बाद होने से बचा दे। ईमान के माहौल में ईमान देखना, लज्जत में कैसे झूमती है जान देखना। मोमिन की यही शान है, ये शान देखना। वो गश्त लगाता हुआ सुल्तान देखना। अल्लाह की बात के लिए मिलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। जी, हम इस वक्त दुआ के बाद के मनाज़र आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और रायविंड आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। मेरे पस मंज़र में आप देख भी रहे होंगे कि लोग जौक दर जौक जिस तरह से इस इज्तिमा में शिरकत के लिए आए थे, उसी तरह हिदायत के ऐन मुताबिक अब वो अपने अपने घरों को, अपनी अपनी मंजिलों की तरफ वापस तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। और बड़ा ही मुनज़्ज़म सिलसिला है। पहले जिस तरह से आपको मैं बता चुका हूँ कि पहले पैदल लोग जाएंगे, फिर उसके बाद छोटी गाड़ियाँ निकलेंगी, फिर उसके बाद आखिर में बड़ी गाड़ियों की निकासी यहाँ से होगी इंशाल्लाह। कुछ छोटी गाड़ियाँ भी यहाँ आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि पैदल निकले हुए लोगों को तकरीबन अब आधा पौना घंटा हो चुका है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता छोटी गाड़ियाँ निकल रही हैं। और ये मेरे अक़ब में जो कुछ गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये रायविंड मरकज़ की अपनी गाड़ियाँ हैं जो अंदरून पिंडाल की खिदमत पर मामूर हैं। बाकी जो मेहमानों की और दीगर यहाँ शुरका की जो गाड़ियाँ हैं वो तो बाहर पार्किंग्स के अंदर हैं, उनको यहाँ अलाउ भी नहीं है।
لیکن فی الحال آپ یہ مجمع دیکھ سکتے ہیں جو کہ واپس اپنے اپنے گھروں کو جا رہا ہے. تو ہم بھی آپ سے اجازت ہی چاہیں گے انشاءاللہ. اس اجتماع کا جو احوال ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکے بہت کوشش کے بعد وہ ہم نے کیا, اور جو نہیں کر سکے اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہیں. اگلے سلسلوں میں انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات رہے گی, اور ہم ہر وہ چیز آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے جس میں آپ کی دلچسپی ہے, جس سے آپ کو محبت ہے, جو آپ کو پسند ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ, چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ, اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ, چل